Welcome back to the Bowling Sisters. We are back again, and today we are back for game week number 22 and 23 as well. हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए. First of all, let's talk about game week number 22 जो एक डबल गेम वीक है, and then again we've got game week number 23 जो again एक डबल गेम वीक होगा. गेम वीक नंबर 22 में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीड्स यूनाइटेड का एक डबल गेम वीक है. They're playing Crystal Palace, Manchester United playing Crystal Palace, and then Leeds at home. Whereas Leeds United का है Nottingham Forest away and Manchester United away. दो away games उनके लिए. And the same thing in game week number 23, we've got Arsenal and Manchester City playing against each other. One is Brentford at home and then Manchester City at home, whereas Manchester City has Aston Villa at home and Arsenal at away. So these are the two game weeks which we have to look at, game week number 22 and game week number 23. Also keeping in mind that game week number 25 will be a blank game week for Newcastle United and Manchester United. So अगर आप अपने आप को डबल अप या ट्रिपल अप कर रहे हो गेम वीक नंबर 22 और 23 के अंदर, यूजिंग 22 में आप यूनाइटेड के प्लेयर्स एंड 23 में आप अपने आर्सेनल के प्लेयर्स, 25 में ध्यान रखिएगा न्यूकासल विल हैव अ डबल गेम वीक, न्यूकासल विल हैव अ ब्लैंक, जिनका आगे जाके एक डबल गेम वीक फंसेगा. सेम चीज़ इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. अभी अगर आपने अपने आप को डबल अप या ट्रिपल अप करा है, वो आगे जाके बहुत नासूर बन सकता है. सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट इन गेम वीक नंबर 25 यू विल नॉट हैव एट लीस्ट 3 to 4 players of a single team not playing. क्यों मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रिपियर है, रैशफोर्ड है, and even Martinelli is there. We've got Saka is there. We've got White also from Arsenal. So ये De Bruyne है मेरे पास. And even Almiron is there. So we have to make sure कि हमारे पास जो players हैं वो बिल्कुल सही प्लेयर्स हों गेम वीक नंबर 25 में, ताकि वो ज़्यादा हिट ना लगे. नाउ स्पीकिंग अबाउट दैट, I will also like to tell you guys that game week number 29 में आप एक और डबल गेम वीक होगा. गेम वीक नंबर 32, 33 में शायद एक ब्लैंक गेम वीक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द FA कप के राउंड एज वेल. इवन दो दैट इज अ लॉन्ग वे अपार्ट, वील टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, बट राइट नाउ द मेन agenda and the fixtures which we have to look at is game week number 22 and 23. So जो भी आप टीम बनाएं, आपके पास एक ऑप्शन है फ्री हिट लेने का या बेंच बूस्ट लेने का. इवन ट्रिपल कैप्टन maybe is a good chance right now. I might be doing that this week, looking at the kind of performances Manchester United has been building out week in and week out. I believe this might be a good game week for us to take a triple captain, and you might later in the video might see that what I am planning to do for this game week as well. So now coming on to my game week number 21 की टीम, उन्होंने क्या किया, what were my points, what did I do. So let's get straight into it and let me tell you about what I have done. So game week number 21 I had 79 points, and in 79 points we had a overall rank of 2 million actually, 2.06. मैंने एक ट्रांसफ़र किया था. My overall points have gone on to 1290 points. My overall rank has improved to 188,000, which was somewhere in the 200,000s last week. It is improving gradually, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना मेरा 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले था. काफ़ी डिप्स भी आए हैं पिछले कुछ हफ्तों में. So that is something I am looking at. So what my team looks like and जो मेरी टीम ने करा वो मैं एक बारी बता देता हूँ. इसके बाद फिर then we'll get into the transfers or what I am planning, what are the thoughts कि मैं क्या ट्रांसफर्स करूँगा, क्या ट्रांसफर्स नहीं करूँगा, मेरी डिफेंस कैसी होगी, मेरा फॉर्मेशंस क्या होगा. आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन डिटेल in the coming segments further. So right now let me tell you what is my team like and what was my team like. First of all, I had Sanchez, I had Cucurella who had come in with 6 points. I've got Lewis Dunk and Trippier Cucu gave me 6, Dunk gave me 1 and Trippier gave me 8.
Saka gave me 9, Almiron has given me 3, De Bruyne 6, Rashford 7, Martinelli has 2 with my midfield, a 3-5-2 formation, a standard formation which you guys have been looking at and I've been following that formation for a long period of time. Now coming on to Mitrovic, who has given me 2 points at my forward line, and Haaland, who gave me 34 points being my captain. He had a hat-trick. So he is in immense form. 4th hat-trick of this season for him. So that guy is not a person to be taken out at all. So, and coming on to my my people who are in their subs, I've got Kepa, who gave me 9, Cancelo is 0, White was 0, and Solanke was also apparently 0. So I've got a lot of changes which I have to do. So let's get straight into it. And first, let me talk about my transfer strategy for game week number 22. And also keeping in mind my game week number 23 strategy also in mind. This is what my plan is going to be for game week number 22 and 23. So game week number 22 में जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरे पास है यूनाइटेड के डबल फिक्सचर्स, एंड गेम वीक नंबर 23 मेरे पास है आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के डबल फिक्सचर्स. सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस हफ्ते में क्या क्या करने वाला हूं वो मैं पहले बता देता हूं. सबसे पहली चीज है, मेरे पास कैंसिलो, तो मैं कैंसिलो को हटा रहा हूं. वो मेरे 7 मिलियन का एक बहुत बड़ा हेडेक था, वो मैंने हटा दिया है. दूसरी चीज है, मेरे पास एक डे ब्रून है जो मैं हटाऊंगा, और तीसरा बंदा जो मैं अभी हटाने की सोच रहा हूं वो है मेरा एल्मिरॉन. ये 3 बंदे मैं हटाऊंगा. दैट इज टेकिंग मी, आई एम टेकिंग अ हिट of a -8 for this week. Yes, I know I'm taking a big punt over here. And आगे मैं एक और चीज़ बताऊंगा जो मेरे पास बहुत बड़ा punt है. I don't know will it pass or fail, but this is what my thing is and what my thought process is. Do let us know in the comment section below कि आप लोग का क्या thought process है, या आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या जो मैंने किया है वो आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है. So on that note, let me tell you, for my Cancelo's replacement, what I'm going to be bringing in is लूक शॉ, और बहुत अच्छा प्लेयर, प्लस अ डबल गेम वीक. ही इज बीन इन प्राइम फॉर्म, अ 5.3 का मिड डिफेंडर, बहुत अच्छे फॉर्म में भी है. आई कैन यूज हिम एज वेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज वेल, until at least game week number 25. So I have Shaw for sure who's going to be coming in. Now for my midfield, I am going to be taking in instead of a De Bruyne, I am removing a De Bruyne. क्यों मैं De Bruyne रिमूव कर रहा हूँ? क्योंकि 12.5 पे De Bruyne है. अगर मैं आज के टाइम पे रिमूव करता हूँ, मैं अगले हफ्ते में वापस भी लेके आता हूँ, De Bruyne का प्राइस नहीं बढ़ेगा. सो दैट वेज आई एम टेकिंग दैट इनटू अकाउंट. सो De Bruyne की जगह मैं जो लेके आऊंगा वो होगा ब्रूनो फर्नांडिस. अगेन अ डबल गेम वीक. आई एम ट्रिपिंग, आई एम डूइंग अ 3-up on Manchester United for the double game week. And for in replacement of an Almiron, जो आजकल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बहुत स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस रह गई है उनकी, 3 पॉइंट 2 पॉइंट दे रहे हैं. उसकी जगह पे जो मैं लेके आऊँगा वो लाऊंगा मैं ब्राइटन के, जो मैं ब्राइटन के प्लेयर लेके आऊँगा वो लाऊंगा मैं मिनामिटो. बहुत अच्छे फॉर्म में है, मिडफील्डर है. मिटोमा को लेके आऊँगा, and he's a 5.1. I still save. अगर मैं ये चीज़ देखूं कि मेरे पास, अगर मैं मिटामो को लेके आता हूं तो मेरे पास काफ़ी एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिल जाता है in terms of playing in as well. And his performance in the last 2-3 game weeks has been immense. अभी तक ये काफ़ी brilliant performances देते आ रहे हैं in terms of his performance for Brighton since the time he started to play. He's been giving, पिछले हफ्ते में उन्होंने लेस्टर के अगेंस्ट में 10 पॉइंट दिए थे, उससे पहले लिवरपूल के अगेंस्ट में उन्होंने 6 पॉइंट दिए थे, एवर्टन के अगेंस्ट में 8 पॉइंट दिए थे, आर्सेनल के अगेंस्ट में 7 पॉइंट दिए थे. सो ओवरऑल इन द लास्ट 4 game weeks he's been performing consistently and he's been playing for an ample amount of time. I believe he's playing 90, 77, 89 and 90 minutes equally. So that ways I am going to be keeping Mitoma as my 5.1, and that what it does is it gives me a hefty amount in my bank of a 5.1, जो कि मैं अगले हफ्ते में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते भी मैं शायद 3 सब्स्टिट्यूशंस करके मैं एक बहुत बड़ा चीज़ करना चाहूँगा. इस हफ्ते के लिए दीज आर द 3 फॉर्मेशंस विच आई एम गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ. एंड उसकी जगह पे जो मेरा फॉर्मेशन आना चाहिए इस हफ्ते में, वो मेरा फॉर्मेशन होगा ये. एंड दिस फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी क्वाइट a new formation. So instead of Sanchez, I'm going to be bringing in Kepa Arrizabalaga. सबसे बड़ी चीज़, फुलम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं. इट इज़ गोइंग टू बी, एंड काफ़ी ट्रांसफर्स चेल्सी ने भी करने, तो आई एम होपिंग कि चेल्सी के अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी आगे भी आएगी. सो आई विल ब्रिंग इन केपा नंबर 1. नंबर 2 मैंने कैंसेलो की जगह पे मैं शॉ लेके आया हूँ, तो शॉ विल बी स्ट्रेट अवे स्लॉटिंग इन.
डंक खेल रहा है बोर्नमouth के अगेंस्ट में, और मेरे पास होगा कुकुरेया हु इज प्लेइंग फुलम. वी हैव टू कीप इन माइंड दैट जेम्स इज ऑल्सो नॉट फिट. फुल टाइम फॉर फुल गेम तो नहीं खेलेगा, मे बी 30 मिनट्स और सो ही माइट प्ले. सो मैं चांसेस ये हैं कि मैं कुकुरेया को शायद खिलाऊं. बट फुलम के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैं फुलम स्कोर भी करती है. देव गॉट मार्को सिल्वा की साइड है, मित्रोविच है, आंड्रेस परेरा है. सो दीज गाइज आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग टू ब्रिंग अ कुकुरेया इन. सो दैट वेज आई एम ऑल्सो लुकिंग एट दैट. मे बी ऐसा हो कि मैं शायद डंक के साथ जाऊं, विच आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट, बट आई विल डू दैट. माई मिडफील्ड विल बी द सेम. फॉर्मेशंस में कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं 3-5-2 की फॉर्मेशन ही करूंगा. आई एम टेकिंग डिब्रून, डिब्रून तो मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे आया मेरा फर्नांडेज, जो फर्नांडेज मेरा 9.9 मिलियन का है एट डबल गेम वीक. आई गॉट साका. एल्मेरो की जगह पे मिटोमा लेके आया हूं, सो मिटोमा इज गोइंग टू बी माई अनदर पिक. आई गॉट मार्टिनेली, आई गॉट रैशफोर्ड, एंड माई फ्रंट लाइन इज गोइंग टू बी द सेम जो मेरे पिछले हफ्ते थी, वो थी मित्रोविच और हालैंड की. और एक चीज बहुत बड़ी होगी इस हफ्ते के लिए, मेरा कैप्टन होगा मार्कस रैशफोर्ड नंबर 1, एंड नंबर 2 बहुत बड़ा फैक्टर ये होगा मेरे पास कि मैं मार्कस रैशफोर्ड को इस हफ्ते में कैप्टन रखूंगा. एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं एक बहुत बड़ा पंट खेलूं. आई एम स्टिल इन द हंच ऑफ इट. मे बी इस हफ्ते में अगर मैं ट्रिपल कैप्टन खेलता हूं तो मेरे को शायद, डिपेंडिंग ऑन यूनाइटेड्स फॉर्म जो पिछले 10 हफ्तों से बहुत अच्छी चल रही है, दे हैव नॉट लॉस्ट अ गेम एज वेल. सो आई वांट टू कीप दैट इन माइंड and play Rashford for the next 2 game weeks, which is Crystal Palace and Leeds at home. And both the games at home, Rashford will be playing very well, along with Bruno Fernandes, जो एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. So both these players, I believe, are going to be my game changers. Mitamo will be a big differential for anybody who wants a midfielder replacing Almiron. So Almiron के replacement में ये बहुत बड़ा एक aspect आएगा. So this is what my team is going to be looking like at a 3-5-2 formation. I'm bringing in Kepa Arrizabalaga. Backline पे मेरे पास होगा Shaw, Dunk, Trippier. Then I've got De Bruyne बोल रहा मैं. I've got Fernandes. Then I've got Saka, Almiron, Martinelli and Rashford. And then in the front line I've got Mitrovic and Haaland. मेरी जो bench है वो होगी Sanchez की, कुकुरेया, वाइट एंड सोलंकी, जो अगले हफ्ते में चेंज होगा. इफ यू लाइक सच कंटेंट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एनेबल दोस नोटिफिकेशंस, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन below that what are your thoughts on game week number 22 and 23. So I'll catch you guys in the next one. Adios.